Hello students, today in this lecture we'll cover kinematics of rigid bodies. This is our first lecture of this topic, kinematics of rigid body. In first lecture I will discuss about theory part which is required for solving problems. Complete basic fundamentals, right? Once we'll understand this part, then solving problems of kinematics of rigid bodies are very easy, right? Now basically kinematics means what? Kinematics and kinetics, these are two branches of dynamics, right? In dynamics what we'll do, we'll analyze motion. This kinematics is the branch of dynamics in which we'll analyze motion without considering masses and forces. That means in this chapter we will not get anywhere how much is the mass of link or bar or how much force is acting, how much couple is acting. Because in kinematics part, without considering cause of motion, without considering its masses, will analyze motion. Next जो रहता है, it is what? Kinetics. So in kinetics will analyze motion considering forces which are acting as well as masses. That means in this chapter will not get any force and will not get masses. So in kinematics of rigid bodies we'll discuss some types of motions. Suppose listen carefully, ये जो है this one is what? ये एक rod है. This one is what? A rod. Rod कैसा है? Horizontal. ठीक है, एक rod है. Now this rod is hinge supported. देखो hinge support means what? Where rotational motion is allowed. Where rotational motion is allowed. फॉर एग्जाम्पल ये सपोज रॉड है, एक प्लेट फ्रंट साइड में है ऐसा, दूसरा प्लेट बैक साइड में है, एक पिन इंसर्ट किया थ्रू द एंड, सो दैट which type of motion is possible? तो this can rotate about this pin which one passing through this end of the bar. Clear? ये जो है this is what? Rotational motion means rotational motion is allowed. जैसा all our doors at home they are hinge supported to the frame so that door can rotate. That type of support is what? Hinge support. Now this one is hinge support at this end. Say name of this end is O. Other point is what? A. We simply rod OA which is hinge supported at O rotates in some direction. For example, this will rotate in clockwise direction with constant angular velocity omega. Initially bar is in horizontal position. कैसा है? Horizontal. 90 डिग्री रोटेशन हो गया तो बार कैसा हो जाएगा? Vertical. Again 90 degree horizontal on left side. Again 90 degree vertical. Again, that means this will continue its motion, right? When it rotates or when motion continues, आपका जो point O है, which is what? Center of rotation. This rod rotates about what? About point O. Point O is called as center of rotation. Position of center of rotation remains fixed. When during motion, position of center of rotation remains fixed, then such type of motion is called as what? Pure rotational motion. It is called as what? Pure rotational. Pure rotational motion. Clear? Which motion is called as pure rotational motion? If during motion position of center of rotation remains fixed, right? Position of center of rotation remains fixed. Clear? Chalo, once more, pure rotational motion means what? The motion in which position of center of rotation remains fixed. Which is the center of rotation? Point O. ये जो point है, this point is called as what? This called as what? Center is what? Center of rotation. Now when body rotates, so if we take some points on this rod are called as link, right? This one is one of the link or rod. If you want to find out linear velocity, अभी linear velocity अगर निकालना है तो ये तो इधर ओमेगा है, you have to find out linear velocity. मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू मस्ट नो रिलेशन बिटवीन
लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल इक्वेशन है v इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा। v क्या रहता है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, आर मीन्स रेडियस ऑफ रोटेशन एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड इज इजी, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। फॉर दैट वन जस्ट सी हियर, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है 11th-12th में, राइट। सपोज ये एक आपका ऐसा पार्टिकल है विच परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन में भी एक ऐसा प्लेट वगैरह है, राइट। ये है सेंटर। अबाउट दिस पॉइंट इफ इट रोटेट से इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ सम पॉइंट, से दिस वन इज व्हाट, ये एक पॉइंट लिया सपोज, राइट। विच पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट लिया, पॉइंट ए। तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, आपका ओ ए रेडियस ऑफ रोटेशन है। तो आपका लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल रहता है ना, ओ ए नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर, ओमेगा क्लॉकवाइज है, ये कैसा आता है, डाउनवर्ड। ऐसा कुछ था ना सर्कुलर मोशन में। मीन्स व्हाट, ये जो लीनियर वेलोसिटी ये टेंजेंट टू द पाथ ट्रेस बाय पार्टिकल, इन दिस केस सर्कुलर है तो टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा सपोज एक पॉइंट इधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी। ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज, वेलोसिटी किधर आना चाहिए, लेफ्टवर्ड वी बी। और बी पॉइंट इफ विल जॉइन टू ओ, दिस वन इज नॉर्मल, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस वन इज व्हाट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सपोज ये पॉइंट है सी। चलो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन। ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज, वेलोसिटी कैसा आया, इन द सेम सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इट इज टेंजेंट or perpendicular to radius of rotation and in the same sense of omega, omega clockwise, velocity downward, leftward, ऐसा। उल्टा घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये डाउनवर्ड आएगा, ये राइटवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। क्लियर? इफ विल यूज सेम थिंग हियर। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अभी सर्कल आई हैव नॉट ड्रॉन, but path traced by point A is what? Circle of what radius? Equal to what? OA. Center of rotation is what? Point O. Now first we'll represent what? Radius of rotation. Radius of rotation means what? जो point का linear velocity निकालना है, suppose point A, this point will join to center of rotation. Center of rotation क्या है? Point O है. If I'll join point O टू पॉइंट ए, मीन्स जिसका वेलोसिटी निकालना है ओ पॉइंट विल ज्वाइन वेयर टू सेंटर ऑफ रोटेशन, कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस ऑफ रोटेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब ये रेडियस ऑफ रोटेशन है। लीनियर वेलोसिटी कैसा रहता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन, मीन्स इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ओ ए मीन्स परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन। अभी डायरेक्शन अपवर्ड के डाउनवर्ड बोलो फटाफट। ये कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहते नीचे जाएगा ना, क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अपवर्ड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। इफ देयर इज वन मोर पॉइंट हियर, ये सपोज पॉइंट बी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन। अभी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, अभी रेडियस ऑफ रोटेशन ओ ए नहीं है, you are finding linear velocity of what, point B. This point B will join to center of rotation, आपका OB radius of rotation हुआ। linear velocity is perpendicular to radius of rotation means perpendicular to OB, omega clockwise है, velocity where vertically downward, VB. One more point I will represent here, C. What is the direction? रेडियस ऑफ रोटेशन आपका OC है, परपेंडिकुलर टू OC, राइट। ये इसको परपेंडिकुलर एंड इन द सेम सेंस ऑफ ओमेगा। अभी इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू व्हाट, R इंटू ओमेगा। अभी ओमेगा मीन्स व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी।
आर मीन्स व्हाट, रेडियस ऑफ रोटेशन। अभी सब पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है। पॉइंट ए के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, बोलो फटाफट। फॉर ए रेडियस ऑफ रोटेशन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ओ ए हो जाएगा। पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है तो रेडियस ऑफ रोटेशन बी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन ओ बी। Vc is what, R into omega. Omega is what, OC. That means for these points, if you want to write equation, VA equal to what, OA into omega. OA क्या हुआ, रेडियस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है ना सबको। देखो VB क्या है, R into ओमेगा। VB के लिए पॉइंट B का वेलोसिटी मीन्स इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, OB इंटू ओमेगा। OB होगा आपका रेडियस ऑफ रोटेशन। VC फॉर पॉइंट C, इफ यू वांट टू फाइंड आउट लीनियर वेलोसिटी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। आप एकदम केयरफुली सुनो, सो दैट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर विच पॉइंट you are finding the linear velocity, if you are finding for any point, then its distance from center of rotation is what, radius of rotation. Clear? अभी VA, VB, VC you are getting, which velocity is maximum, which one is minimum? देखो आपका ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये तो टर्म कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। किसका आर सबसे ज्यादा है, विच इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, मीन्स ए का रेडियस सबसे ज्यादा, ओ ए मैक्सिमम है, ओ बी उससे छोटा है, ओ सी छोटा है, मीन्स कौन सा वेलोसिटी मैक्सिमम आना चाहिए, वी ए आना चाहिए सबसे मैक्सिमम। फिर इससे छोटा क्या आएगा, वी बी, इससे छोटा क्या आएगा, वी सी। एज विल मूव टूवर्ड सेंटर ऑफ रोटेशन लीनियर वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर आप पॉइंट ओ का लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं तो इधर तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ओ इज व्हाट, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। वीओ जीरो आई रिटर्न मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज जीरो। कभी कभी क्या होता है, टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ रोटेशन बिकम्स डिफिकल्ट इन नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, जनरल प्लेन मोशन। आपको क्या ध्यान में रखना है, सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स विच पॉइंट हुज लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। पॉइंट, पॉइंट ऑफ जीरो लीनियर वेलोसिटी, point of zero linear velocity is center of rotation. Point of zero linear velocity क्या रहता है, center of rotation. और linear velocity of center of rotation is जीरो। क्लियर? तो इफ विल फाइंड आउट अ पॉइंट ऑफ जीरो लीनियर वेलोसिटी मीन्स होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। इधर तो आपको पता है कि पॉइंट ओ डजेंट मूव फिक्स है वो, राइट, डजेंट मूव इन एनी डायरेक्शन। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट ओ फिक्स है मीन्स पॉइंट ओ का लीनियर वेलोसिटी जीरो मीन्स वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। व्हेनेवर एनी मोशन इज गिवन लाइक दिस, प्योर रोटेशनल मोशन, हिंज जिधर भी रहता है उसका लीनियर वेलोसिटी जीरो, तो होता है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। This rod performs now which type of motion? Pure rotational motion. एक कंप्लीट इसमें ना एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी। क्या है ये इंपॉर्टेंट? कैसा है वेलोसिटी? मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन एंड in the same sense of omega clockwise velocity downward, anti clockwise upward. That means इसमें ये तो नोट करना ही है while solving problem। मैं आपको याद दिलाते जाऊंगा। देखो क्या लिखा था नोट, कैसा है, लीनियर वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। किसका लीनियर वेलोसिटी, ऑफ एनी पॉइंट on the rigid body, linear velocity of any point on the rigid body। कैसा रहता है,
इज ऑलवेज कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसको, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ रोटेशन. क्लियर. Linear velocity of any point on the rigid body is perpendicular to the radius of rotation, and in the same sense of omega means angular velocity, and in the same sense of angular velocity. कैसा linear velocity सबको ध्यान में है ना, ध्यान में रखना है. विदाउट फेल आपको किधर भी लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो आपके दिमाग में अरे रेडियस ऑफ रोटेशन किधर है ढूंढो, उसको परपेंडिकुलर निकालो. लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ रोटेशन एंड इन द सेम सेंस ऑफ ओमेगा. ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो ये होगा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन विच वन इज इजी, राइट. अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, चलो फटाफट नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो मोशन है, अगेन एक रॉड अज्यूम करते हैं, राइट, एंड सम डायरेक्शंस ऑफ लीनियर वेलोसिटीज विल ट्राई टू फाइंड आउट. तो से डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो सकता है, राइट. आपको अभी तक क्या पता है, linear velocity is perpendicular to radius of rotation and in the same sense of omega. नंबर 1. दूसरा, linear velocity of center of rotation क्या रहता है, 0. अभी सपोज ये जो है दिस वन, देखो इधर डायग्राम निकाल रहा हूँ, ये आपका ऐसा वॉल है, वर्टिकल वॉल, स्मूथ वर्टिकल वॉल, रफ नहीं है. स्मूथ मीन्स इजीली यू कैन से बॉडी कैन स्लाइड, राइट, नो फ्रिक्शनल रेजिस्टर. एक वॉल है, एक ग्राउंड है. अभी एक रॉड लिया, यू कैन से लैडर, रॉड, लिंक, उसका एक एंड जो है दैट इज ऑन वॉल इन कॉन्टैक्ट विथ वॉल, अदर एंड जो है इज इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड. सपोज ये जो एंड है ये ए है, अदर एंड इज व्हाट बी. इसका एनी एंगल ऐसा कुछ दिया है, एंगल इज व्हाट अल्फा. लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन, ए बी इज गिवन. इफ इट इज गिवन कि नाउ एज कॉन्टैक्ट सर्फेसेस आर व्हाट स्मूथ एंड ladder slips end A has to slip in which direction, along the wall in डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर एंड ए डाउनवर्ड आता है तो बी विल स्लाइड इन विच डायरेक्शन, इट हैज टू स्लाइड इन राइटवर्ड डायरेक्शन. एक्चुअली एंड ए के लिए एक ही ऑप्शन है, एक तो अपवर्ड जाओ नहीं तो डाउनवर्ड. बी के लिए लेफ्टवर्ड है, राइटवर्ड. विल अज्यूम कि कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ है एंड एंड ए स्लाइड्स, तो इट स्लाइड्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी विल स्लाइड इन विच डायरेक्शन, राइटवर्ड. दैट मीन्स हियर आई विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. कैसा, वी ए डाउनवर्ड, राइट. ए डाउनवर्ड है तो बी राइटवर्ड जाएगा ना, इतना समझ में आता है ना. यस, ये राइटवर्ड जाएगा, राइट. ये ऐसा ये नीचे आएगा तो ये किधर गया, राइटवर्ड. ये जो है दिस वेलोसिटी इज व्हाट, वी बी. कुछ प्रॉब्लम नहीं. अभी मुझे इसका सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है. क्या निकालना है, सेंटर ऑफ रोटेशन. इधर तो हिंज नहीं है, दैट मीन्स दिस रॉड डजंट परफॉर्म्स प्योर रोटेशनल मोशन. नंबर 1. आपके पास में एक पार्ट जो डिस्कस किया था उसमें क्या पता है आपको, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन 0. नंबर 1. दूसरा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन. वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन है, लास्ट इसमें आपको रेडियस ऑफ रोटेशन पता था, ऐसा रॉड ओ ए दिया, राइट. अभी वो हिंज एंड रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया है. वेलोसिटी कैसा था, ये ऐसा रॉड, ये आपका हिंज, ये ऐसा रोटेट हो गया, ये आ गया वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ रोटेशन मीन्स आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसे ना.
दैट मीन्स v जो है इज परपेंडिकुलर टू r, मीन्स वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। आपको अगर रेडियस दिया है तो उसको परपेंडिकुलर निकाला, वेलोसिटी मिल गया। अभी वेलोसिटी दिया है, इधर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है, रेडियस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, उसको परपेंडिकुलर टू r। अभी r अगर परपेंडिकुलर टू va है, आपका ये va इधर vb है, रेडियस ऑफ रोटेशन आई हैव टू रिप्रेजेंट, व्हाट विल डू, va वर्टिकल है तो रेडियस ऑफ रोटेशन इसको परपेंडिकुलर मीन्स कैसा आना चाहिए, ये तो इसको परपेंडिकुलर मीन्स हॉरिजॉन्टल आना चाहिए कि नहीं। ये आपका उसको सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं पता है भैया, आपको यही पता है कि हाँ va वर्टिकल है मीन्स रेडियस ऑफ रोटेशन इसको परपेंडिकुलर मीन्स कैसा आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। अभी रेडियस ऑफ रोटेशन ये आ गया हॉरिजॉन्टल है, सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं पता, सेंटर ऑफ रोटेशन इधर है किधर है, इधर गया और राइट में गया, डोंट नो राइट, ठीक है। बट आपको ये पता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहता है, 0। बट ये तो एक ही रॉड है ना, सिंगल बार है, रॉड इज ओनली वन, एक रॉड है, एक बॉडी है, एक लिंक है, कितना सेंटर ऑफ रोटेशन आना चाहिए, 1, ओनली 1। सेंटर ऑफ रोटेशन फ्रॉम वी क्या मिल गया कि ये लाइन में किधर तो आना चाहिए, कंफर्म है ये लाइन में आएगा। आपके पास में ये भी है ना वीबी। नाउ एज पर डायरेक्शन ऑफ वीबी रेडियस ऑफ रोटेशन कैसा आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये तो हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मीन्स क्या आएगा, वर्टिकल ना, यस ये आ गया, इसको परपेंडिकुलर निकाला। देखो मुझे पता नहीं है अब वो है बिलो है तो मैंने ऐसा एक लाइन निकाला। ऑन दिस लाइन यू मस्ट गेट सेंटर ऑफ रोटेशन बिकॉज ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया परपेंडिकुलर टू वी। ये जो है इसको परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ रोटेशन है। अभी इसको थोड़ा अगर निकालता हूं ऐसा एक्सटेंड किया, सुनो फ्रॉम ये रेडियस ऑफ रोटेशन है, ऑन दिस लाइन किधर तो सेंटर ऑफ रोटेशन आना चाहिए, नंबर 1 में सेंटर ऑफ रोटेशन ऑन दिस लाइन। फ्रॉम वी बी उसको परपेंडिकुलर निकाला तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन है, मैं सेंटर ऑफ रोटेशन ये लाइन पे आना चाहिए। बट एक ही तो सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा, मीन्स इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही सेंटर ऑफ रोटेशन है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी को ये परपेंडिकुलर, अभी इधर ये पॉइंट आएगा, राइट। ये हिंज नहीं है, अब ये ऐसा पॉइंट है कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, व्हेन से t इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 इनिशियली करेंगे तो t 0 एंगल अल्फा है, ये इंस्टेंट के लिए आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ये पॉइंट आएगा 100%, राइट। दैट मीन्स ये होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर देखते हैं इसको सेंटर ऑफ रोटेशन ये कैसा आया, राइट। ये नंबर 1। अभी ये कुछ टाइम t इक्वल टू 0 पे लिया, एज टाइम पासेस इसका तो मोशन डाउनवर्ड है, इसका मोशन किधर है, राइटवर्ड। आफ्टर सम टाइम से a विल टेक पोजीशन a डैश, तो b आपका कुछ राइट साइड में आना चाहिए b डैश। आफ्टर सम टाइम न्यू पोजीशन ऑफ रॉड AB इज व्हाट, a डैश b डैश, a डैश b डैश, ठीक है, ये a डैश b डैश ऐसा कुछ पोजीशन है। दैट मीन्स अभी ये अगर मैं पोजीशन ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं a डैश b डैश, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये तो डाउनवर्ड ही जा रहा है ना, मीन्स व्हाट, ये आपका वेलोसिटी विल कंटिन्यू, बट अभी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। से नेम ऑफ पॉइंट a डैश, तो क्या हो जाएगा v a डैश। पॉइंट बी राइटवर्ड मोशन कंटिन्यू करेगा, नेम ऑफ पॉइंट बी डैश है, तो वेलोसिटी क्या होगा वी बी डैश। क्लियर। अभी ये पोजीशन पे चलो सेंटर ऑफ रोटेशन विल ट्राई। कैसा रहता है सेंटर ऑफ रोटेशन, पहले तो रेडियस ऑफ रोटेशन निकालेंगे, जैसा इधर आया था वैसे सिमिलर इधर आ सकता है ना। परपेंडिकुलर टू वी ए मीन्स वी ए डैश मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर टू वी ए डैश हॉरिजॉन्टल हुआ। परपेंडिकुलर टू वी बी डैश मीन्स कैसा हुआ, वर्टिकल हुआ। अरे इधर आ गया ये पॉइंट, मीन्स आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है।
ये जैसे ही थोड़ा ये नीचे आया, ये थोड़ा हल्का राइट में गया, तो आपका इधर से परपेंडिकुलर, इधर से इधर किधर सेंटर ऑफ रोटेशन, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, मीन्स से फिक्स नहीं है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स, मीन्स ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन है ये, दिस इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल और दैट टाइम इंस्टेंट। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे अभी ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, मीन्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज वैलिड फॉर a particular time instant, valid for that particular time instant. Therefore such type of center of rotation is called as what? Instantaneous center of rotation, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICR। मोस्टली बच्चे लोग बोलते हैं ये काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का असाइनमेंट नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए? आईसीआर का असाइनमेंट। आईसीआर का क्वेश्चन है क्या? तो ये आईसीआर है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन है, नेम ऑफ टॉपिक नहीं है। व्हाई नेम इज गिवन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन is not fixed. As time passes, we will get different position of center of rotation. Any center of rotation if will represent, जैसा इधर represent किया for this position AB at this time instant से t equal to 0 second, next at t equal to 4 second, suppose A dash B dash आए तो न्यू पोजिशन आया, वो जो पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन है दैट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. देयरफॉर नेम ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन is not fixed. Position of center of rotation is not fixed. Position of center of rotation, center of rotation is valid for a particular time instant. Position of center of rotation is valid for a particular time instant. Therefore center of rotation is called as instantaneous center of rotation. Clear? बिकॉज ये ओरल में वगैरह या किधर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना ऐसे, अरे आईसीआर मीन्स व्हाट, व्हाई नेम इज गिवन एज आईसीआर, व्हाई नेम इज गिवन एज आईसीआर, बिकॉज वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मीनिंग है कि दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, नॉट ऑलवेज, राइट. एज पोजीशन चेंजेस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन चेंजेस. इसलिए जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना ये आईसीआर है, तो इसको और शॉर्ट में लिखते हैं इधर कि ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना इसको आईसीआर का खाली आई मीन्स आईसीआर. ये इनिशियल पोजीशन या पोजीशन 1 पकड़ो तो इसको I1 बोलेंगे, ये आपका नेक्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन पे I2 है, करेक्ट. I1 I2 ऐसा पोजीशन आ गया. अभी अपना इंपॉर्टेंट है कि V इक्वल टू आर ओमेगा इक्वेशन है. V इक्वल टू व्हाट? आर ओमेगा. अभी मुझे लिखना है आपका VA इज व्हाट? तो VA इज रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा. एट दिस पोजीशन अभी आपका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? I1. डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम I1 इज रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू व्हाट? ओमेगा. मीन्स VA इज व्हाट? I1A इंटू ओमेगा. VB क्या आना चाहिए? ये पॉइंट है ना B. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन? I1B. ये सेंटर ऑफ रोटेशन है ना. फॉर दिस AB पोजीशन सेंटर ऑफ रोटेशन I1 है. मीन्स I1B ये क्या आया? I1B इंटू ओमेगा. अच्छा मुझे VA डैश भी निकालना है, फिर कैसे करेंगे?
तो वी डैश अगर निकालना है तो मिस ए डैश बी डैश पोजीशन है रॉड का, तो नाउ सेंटर ऑफ रोटेशन I2 है, तो वी डैश क्या हो जाएगा R इंटू ओमेगा। R क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ए डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, मीन्स व्हाट I टू ए डैश इंटू ओमेगा। चलो वी बी डैश बोलो फटाफट, डिस्टेंस ऑफ बी डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, यही ना, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट बी डैश है, मीन्स व्हाट I टू बी डैश इंटू ओमेगा। While solving problem, you have to solve at particular time instant, और गिवन जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एंगल वगैरह, तो आपको एक ही सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा। ये जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, आई रिप्रेजेंटेड टू पोजीशंस, राइट। इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया ना। अब ये मोशन कौन सा है, तो प्योर रोटेशनल मोशन तो नहीं है। अच्छा, अभी ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज जनरल प्लेन मोशन। अभी किधर से है जनरल प्लेन मोशन, एक्चुअली जनरल प्लेन मोशन मीन्स ऐसा इमेजिन करो, ये आपका रॉड है ऐसा ए बी किधर जा रहा है राइटवर्ड, अज्यूम एंड ए ऑल्सो मूव्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी, मीन्स बी से बी डैश जितना डिस्टेंस एंड बी चलेगा उतना ही डिस्टेंस आपका ए एंड ए चलेगा ना। अगर वेलोसिटी सेम है तो वी बी एंड वी अगर सेम है, मीन्स आपका ये जो पोजीशन आया ए डैश से बी डैश, इंटरमीडिएट पोजीशन आ गया, राइट। व्हाट वी अज्यूमिंग, क्या अज्यूम किया कि ये आपका राइटवर्ड गया, राइट। दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिमेन सेम। ट्रांसलेशन, व्हेन linear velocity of each and every point on a rigid body is same, it is what translation, means b rightward जा रहा है, ए भी जा रहा है, क्या हो रहा है ट्रांसलेशन वी ए वी बी, इसका वेलोसिटी ये वेलोसिटी सेम है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा, तो बी बी डैश एंड ए डैश इज व्हाट सेम। इसको डबल डैश कर देता हूँ, चलो, बिकॉज ए डैश इधर है, ये क्या हुआ ट्रांसलेशन, राइट। मीन्स ए रॉड ऐसा ट्रांसलेट हुआ। अभी इधर फिक्स करो, अभी लेंथ जो है ना ए डबल डैश बी डैश एंड आपका ए बी सेम है, ए डैश बी डैश भी सेम है, लेंथ ऑफ रॉड तो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स बी डैश को ऐसा किया एंड अज्यूम करो ऐसा रोटेट हो गया, राइट। ये लेंथ सेम है ना, बी डैश टू ए डबल डैश एंड बी डैश ए डैश, लेंथ कैसा है सेम, मीन्स ऐसा रोटेट किया, तो ये रोटेशन तो आपका ए डैश ऐसा पोजीशन आएगा ना, इस फाइनली पोजीशन ए डैश बी डैश आया। विच टाइप ऑफ मोशन यू आर गेटिंग, ट्रांसलेशन रोटेशन, कैसा आया ट्रांसलेशन रोट, ये सेपरेट नहीं होता है, सॉरी ये तू इधर जा रहा ऐसा कैसा गया, इट इज फॉर जस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो साइमल्टेनियस मोशन रहता है। ट्रांसलेशन रोटेशन सेपरेट नहीं होता है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेपरेट बनाया कि हाँ देखो ट्रांसलेशन हो रहा है, देन व्हाट रोटेशन, ये साइमल्टेनियस मोशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ translation and rotational motion, and this motion is called as what, इसको क्या बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन इज अ कंबाइंड मोशन। जनरल प्लेन मोशन कैसा मोशन है, कंबाइंड मोशन है, एंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। General plane motion is combined motion and is combination of what? Combination of translation and rotational motion। ऐसे एक combined motion रहता है, combination of translation and rotational motion, and is called as general plane motion। अभी इधर इक्वेशन तो अप्लाई किया, v इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। ओमेगा का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। देखो इनिशियल पोजीशन जो, सुनो मैं इधर निकाल के देता हूँ आपको, देखो ये मेरा रॉड है, ये आपको डायरेक्शन निकालने के लिए ये अपना मेथड है ऐसा। देखो ए एंड ए है, ए बी है, जो सेम एंगल, राइट।
फिर आपने क्या किया, अरे हाँ इधर इसको परपेंडिकुलर निकला, मीन्स आपका ये जो आया पहले ये ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल आया, ये थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा इंक्लाइन किया है, चलो ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा था, ओके ये ऐसा है, राइट, ये एंड है बी, ये एंड है ए, तो ये देखो ए से I1 वाला लाइन निकालता हूँ, बी से I1 लाइन निकाला, एंड ये मेरा जो पॉइंट है ये I1 है, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ रॉड, इमेजिन कि इट्स अ ट्रायंगुलर, इमेजिन करना है टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मीन्स अभी वो 360 डिग्री का सेट स्क्वायर रहता है आपके पास में ऐसा I1AB, और ये जो इधर हिंज नहीं है बट ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा, 0 ना, सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स एट दैट इंस्टेंट इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इसको ऐसा इमेजिन करो कि ये हिंज है, राइट, ये आपका I1, या ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है यू होल्ड इट एट I1, यू होल्ड इट एट I1। अभी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, अरे तो डाउनवर्ड है, राइट, ऐसा था ना, वी भी किधर, तो ये ऐसा राइटवर्ड, ऐसा प्लेट है, इधर एक्चुअल हिंज नहीं है, राइट, बट ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, मीन्स इसका वेलोसिटी 0 होता है एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। इमेजिन कि ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो हिंज है, और ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये राइटवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, क्या डायरेक्शन ऑफ ओमेगा रहेगा, एक इधर गया डाउनवर्ड, एक इधर गया राइटवर्ड, मीन्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ऐसे जाएगा ना, ओमेगा ऑफ दिस रॉड, क्लियर। I1AB ट्रायंगुलर प्लेट इमेजिन करो, होल्ड इट एट I1, VA डाउनवर्ड, VB राइटवर्ड, ओमेगा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट विल डू, उसका जो ICR है, होल्ड दैट प्लेट, इमेजिन इट्स अ प्लेट इंस्टेड ऑफ रॉड, इसको इमेजिन क्या करना है, ये प्लेट है, किधर पकड़ना है, किधर होल्ड करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन पे, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उधर से आपको ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगी, इधर पकड़ कर, अरे ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये राइटवर्ड जा रहा है, किधर गया ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये इतना थ्योरी पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट था, नंबर 1 क्या इंपॉर्टेंट था, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ रोटेशन एंड इन द सेम सेंस ऑफ ओमेगा। ये ICR रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मेथड है, हाउ विल लोकेट ICR, आपको 2 पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी चाहिए, मस्ट, राइट, यू मस्ट नो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, फिर क्या किया, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ICR, मीन्स एक लाइन लिख सकते हैं आप, हाउ टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ICR, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द वेलोसिटी वेक्टर्स, आई विल रिपीट अगेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendiculars drawn to the velocity vectors represents ICR। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इफ यू नो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ICR। अभी थ्योरी यू कैन से ये इधर अपना खत्म हो गया, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक, 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट, सो दैट ऑल यूनिवर्सिटी टाइप प्रॉब्लम जो है सब प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू।